हेलो। 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 Let's start, friends. So yesterday we have solved illustration number 8, right? 8 solve कर दिया ना? Now we have to start with illustration number 9. चलो, let's start illustration number 9, page number 465, new book. Page number 465, new book. Old book में क्या है पेज नंबर? 457. 457. हाँ, illustration 11. ठीक है, illustration number 11. Illustration number 9. Old book में 11 है illustration number. Accelerate company Limited manufacture and sell 4 types of product under the brand name A, B, C and D. The sales mix in value comprises of 33%, 41%, 16% and 8% of product A, B and C respectively. The total budgeted sales at 100% are 60,000 per annum per month. Operating costs are A, product A 60% of sale price, product B 68% of sale price, product C 80% of sale price and product D 40% of sale price. Fixed cost is 14,700. Calculate break-even point for the product on overall basis and also calculate break-even point if the sales mix is changed as follows to the total sales per month remaining the same. Okay. So first of all we will have to calculate the break-even point for this given information and then subsequently we will have to calculate for part number B. ठीक है, so पहले हम लोग given information के लिए find out करेंगे break even point. ठीक है, so there are how many product? 4 products. Scenario 1 given. प्रोडक्ट है कौन से है प्रोडक्ट ए बी सी एंड डी ए बी सी डी ए बी सी डी टोटल how much is the total sales the total budgeted sales at 100% is 60,000 ठीक है now this 60,000 share of sales
share of sales of total sales, share of total sales. So ये कितना है इसका 33 and 33%, 33.333%. B का कितना है 41.6667%. C का 16 point and D का 18 है ना 8.3333%. So ऐसा सब मिला के कितना परसेंट होता है 100%. Share of total sales which has been given by them 33.33%, 41.67%, 16.67% and 8.33%. ठीक है. Now sales in rupees. Sales in rupees has been given. Sales in rupees. कितना है total sales? 60,000 per month. So total sales is 60,000 per month, right? Now what is the share of A? 33.33%. So 60,000 का 33.33%. 60,000 का 40.67%. 60,000 का 16.67% and 60,000 का. So सब मिला के अपना ये शेयर्स है. ओके. वेरिएबल कॉस्ट परसेंटेज VC in percentage of sales. वेरिएबल कॉस्ट कितना है देखो. पहले प्रोडक्ट का कितना है वेरिएबल कॉस्ट. प्रोडक्ट ए 60%, बराबर. प्रोडक्ट बी 68%, प्रोडक्ट सी 80% and product D is 40%. Don't take it total. इसको टोटल नहीं लेना है. ये परसेंटेज वेरिएबल कॉस्ट इन परसेंटेज ऑफ सेल्स. ठीक है. सो लेस वेरिएबल कॉस्ट. नाउ वेरिएबल कॉस्ट कैसे निकालें. हाउ. वेरिएबल कॉस्ट 60% ऑफ सेल्स, राइट. 60% ऑफ सेल्स. यहाँ पे 68% of these sales. Next 80% of these sales and last 40% of these sales. So total variable cost comes to 39,000. Total variable cost comes to 39,000. Clear? Up to here. Online friends, any query? Online friends? Understood, sir. ठीक है. So what we get is contribution, which is nothing but sales minus variable cost. Contribution, it is nothing but the sales minus. So sales 20,000 minus variable cost 12,000, 8,000. ऐसा सब मिला के contribution is 21,000. Contribution is 21,000 total level पे. 8 plus 8 plus 2 plus 3 is equal to 21,000. Done. Now from this contribution less fixed cost. Less fixed cost. So fixed cost has been given at total level. See. Fixed cost at total level 14,700. So fixed cost 14,700. प्रोडक्ट पे नहीं लोड किया है, टोटल लेवल पे. सो व्हाट कम्स इज द प्रॉफिट. What comes is the profit. So sales contribution minus fixed cost is what we get the profit. Now what they have asked us? Calculate break-even point for the product on overall basis. So overall basis पे PV ratio क्या है? PV ratio on overall basis. On overall basis. What is the formula for contribution divided by sales into 100?
contribution divided by sales into 100. So how much is contribution? 21,000 divided by sales into 100. So how much percentage is? 35% is PV ratio. PV ratio on over 35%. What has been asked us? BEP. BEP sales in rupees. क्या है formula? What is formula? Fixed cost divided by PV ratio. So how much is fixed cost? 14,700. PV ratio 35%. So break even point at this stage of at this given scenario is rupees 42,000 rupees. Done? Pakka? Understood? Online friends? Okay. Now what they are saying? Yes, sir. Situation 2 में they are saying sales mix बदल रहे. They are changing the sales mix. So same पर टेबल अपने को फिर से बनाना पड़ेगा. सेम टेबल फिर से बनाना पड़ेगा. ठीक है. तो सिनेरियो 2 proposed. Now how the sales mix is changing? A का कितना है? 25%. बराबर. B का 40%. C 30%. D 5%. So total 100% ये सेल है. Sales in rupees remain same. What they are saying? 60,000 ही है. Calculated break change in follows total sales per month remaining the same. So 60,000 का remain as it is same, but now share has been changed from 33%. It is coming to now 25%. 42% is becoming 40%. 16% is becoming 30%. Okay? So what will be the revised sales? 25% into 60,000. 40% into 60,000. 30% into and 5% into variable cost percentage. VC per variable cost percentage in same, it remains the same. It will not change. It will not change. Obviously it should not change. If it is not given, the variable cost percentage to same remain the same. So 15,000 into 60%. 24,000 into 68%. 18,000 into 80%. And 3,000 into 40%. This comes to variable cost 40,920. $40,920 is what the variable cost coming. Okay. Now we will be able to derive contribution, sales minus variable cost. So contribution has reduced from 21,000 to 19,000. So sales mix change करने से contribution reduce हो चुका है. Less fixed cost is 14,700, and what comes is the profit. So profit has reduced from 6,300 to 4,380. 4,380. PV ratio, revised PV ratio is coming 32%. Earlier it was 35%, it is reducing now. And break-even point should increase. PV ratio बढ़ गया. PV ratio अगर कम होता है तो break-even point बढ़ जाता है.
From 35% to 42, so break-even point has increased from 42,000 to 46,000. Online friends, clear? I believe you understood this. Yes, sir. Yes, sir. Sure. Let's go to next illustration. Number 10. Present the following information to show to management the marginal cost, product cost, and contribution per unit. The total contribution and profit resulting from each of the following sales mix result. Direct material A and B 9 per unit, 10 per unit, 9 per unit. Direct wages A and B 3 and 2. Fixed cost is rupees 800. Variable expenses are allotted to product 100% of direct wages. Sale price is 20 and 15. Now they are giving sales mix combination kitna? 100 units of product A, 200 units of product B. 150, 200. Okay? So let's first derive contribution per unit. इसको उड़ा दो. दो ही प्रोडक्ट है ना अभी. Product A and B. Sales per unit. कितना है sales per unit A and B का? Sale price per unit A and B 20 और 15 रुपए. 20 and 15. 20. Selling price per unit. बराबर? Less variable cost. Less variable. Now what will come as variable cost? Direct material. DMC. कितना है A का? 10 rupees and इसका 9 rupees. 10 and 9. Direct wages. 3 and 2 rupees. 3 and 2 rupees. Variable cost. Variable overheads. Variable overheads कितना है? Variable expenses are allotted to product at 100% of direct wages. So 100% of direct wages 3 and 2. So we will get total variable cost. So contribution. Contribution. What contribution means? Sales minus variable cost. So sales was 20 minus variable cost 16. 4 and 2. Contribution per unit is 4 and 2. Right? ये बना लिया. Now what they are saying, we have to find out the profit for this combination. We have to find out the profit for this combination. Second, this mix, sales mix number 1, sales mix number 2 and sales mix number 3. ठीक. So, ये marginal cost था.
Now statement of marginal cost, contribution and profit. Of profit. Scenario A ना? Scenario A क्या है? 1, 2, 3, 4 है. Scenario A. Number of units कितना है? Number of units कितना है? Number of units कितना से सेल करना है? 100 and 200. So this will give us total also. Number of units 100 and 200. 100 and 200. तो टोटल लेवल पे हम लोग 300 यूनिट बेचने वाले. करेक्ट. नाउ वी हैव टू फाइंड आउट द प्रॉफिट. वी हैव टू फाइंड आउट द प्रॉफिट. पूरा वर्किंग करने की जरूरत है क्या? नॉट रिक्वायर्ड. सो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट. कंट्रीब्यूशन पर यूनिट. रिफर वर्किंग नोट नंबर दिस. क्या है? इसको वर्किंग नोट नंबर दिया रहेगा. सो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट प्रोडक्ट ए का कितना है? 4. प्रोडक्ट बी का 2. डोंट टेक इट्स टोटल. सो टोटल कंट्रीब्यूशन आएगा. टोटल कंट्रीब्यूशन इट इज नथिंग बट 100 into 4 and 200 into 2. सो अपना कंट्रीब्यूशन आता है टोटल लेवल पे 800. बराबर. यस और नो? एम आई गोइंग फास्ट? ऑनलाइन फ्रेंड्स फास्ट जा रहा हूं क्या मैं? ऑनलाइन फ्रेंड्स एम आई गोइंग फास्ट? No, sir, it's fine. Okay. So less fixed cost. Fixed cost कितना बताया उन्होंने? 800 रुपया. Fixed cost is 800. So what remains is what? Profit. Profit कितना है? BEP पॉइंट लेवल पे है. Statement of profit scenario A. No profit, no loss. ठीक है. Statement of profit scenario B. Scenario B. So कितना नंबर ऑफ यूनिट्स बेचना है सिनेरियो बी में? 150 ऑफ ए एंड 150 ऑफ बी. 150 and 150. Contribution per unit that will remain same 4 and 2. So total contribution will be 150 into 4, 150 into 2. So scenario number 2 में profit is 100 rupees. In scenario number 2, scenario बोलो, sales mix बोलो. And last one, scenario number C, sales mix. कितना है sales mix? 200 and 100. Contribution per unit remains the same, 4 और 2. So how much is the profit? So which mix combination is good? Which combination is good? C combination is good.
नेक्स्ट लेक्चर विल बी लास्ट लेक्चर फॉर मार्जिनल कॉस्टिंग. नेक्स्ट लेक्चर में कंप्लीट हो जाएगा मार्जिनल कॉस्ट. कल का लेक्चर वेस्ट नहीं जाता तो आज कंप्लीट हो जाता मार्जिनल कॉस्टिंग. एनीवे, नॉट टू वरी. Next lecture marginal costing will get completed and we will start with standard costing also next lecture में. So last topic of this, एक topic बाकी है छोटा, that we will do. उसको ज़्यादा टाइम नहीं लगने वाला. अगर कोई बीच में कोई लेक्चर कोई लेता नहीं तो प्लीज मुझे मैसेज करो. एक बार किया था आपने मैसेज, बट उस वक्त आई वॉज नॉट अवेलेबल. हाँ नहीं, उसके बावजूद मैं बोल रहा हूँ, अगर किसी का ऑफ आता है, मुझे एक लेक्चर मिलेगा तो मैं जून में नहीं जाऊंगा, मई में कंप्लीट कर दूंगा. नहीं तो एक आध लेक्चर जून में जा सकता है. एंड आई डोंट वांट टू डू दैट. चलो, नेक्स्ट इलस्ट्रेशन नंबर 11. The following particulars are मार्जिनल कॉस्टिंग समझ में आ रहा है ना? अभी कॉन्सेप्ट तो समझ में आ रहा है. देखो, these are very basics concept. इसके बेसिस पे आगे आपको ग्रुप 2 में काफी हायर लेवल का प्रॉब्लम सॉल्व करना पड़ेगा. These are very basics. Only few things that we have to keep in mind. S minus V is equal to F plus P. कितने बार भी बोलेगा आप, फॉर्मूला लर्न भी हो जाएगा, बट until and unless you are conceptually clear, you will not be able to understand what S minus V is equal to F plus P. नहीं तो बोलेगे है क्या इसमें S minus V is equal to F plus P. सिंपल है, बट उसके लिए प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए कॉन्सेप्ट का. दूसरा पीवी रेशियो है. तीसरा ब्रेक इवन पॉइंट. फोर्थ इज मार्जिन ऑफ सेफ्टी. इसके अलावा फिर अभी डिसीजन मेकिंग, थोड़ा सा सेल्स इतना है तो कितना आएगा, इतना प्रॉफिट लेने के लिए कितना करना पड़ेगा. ये स्टेटमेंट एक बार समझ में आ गया, वी आर एबल टू डू मच ऑफ द प्रॉब्लम सॉल्विंग एक्टिविटी कॉन्सेप्चुअली. नाउ इफ यू आस्क मी हाउ मेनी प्रॉब्लम्स आर रिक्वायर्ड टू बी सॉल्व फॉर मार्जिनल कॉस्टिंग, conceptually 15 to 20 problems are more than sufficient. Conceptually, 20 problems. But practice जितना करोगे उतना concept clear होता जाएगा. So please practice these problems. आप reference book भी use कर रहे होगे. Concept remains the same. कौन सा भी book use करो, तरीका अलग अलग हो सकता है, आंसर सेम आना चाहिए. ठीक है? Same applies to standard costing also. A good conceptually cleared standard costing 10 to 15 problems are okay. But without understanding conceptually, you solve 100 problems. Concept अगर clarity नहीं तो there will in examination or there will be a new problem which you will say that standard costing आया है solve करने के लिए. ठीक है? So ये applicable होता है marginal and standard costing both. You have to be very clear conceptually, not in number of problems. नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स आप सॉल्व करो, अगर कॉन्सेप्चुअली नहीं करे तो कोई मतलब नहीं बनता है. The following particulars are extracted from the records of the company. There are two product A and B. Sales, consumption of material kg में दिया है, material cost, direct wages, direct expenses, machine are used, fixed overhead fixed, variable, direct wages per labor is ₹5. Comment on the profitability of each product. Both use the same raw material. When total sales potential in units is limited. Now इसको बोलते हैं key factor. ये प्रॉब्लम अब जो हम लोग सॉल्व कर रहे हैं इसको बोलते हैं key factor की प्रॉब्लम, limiting factor और key factor. Now first one is what limiting factor? Sales in units is a limiting factor. कितने number of sales कर सकते हो अगर limiting factor है तो what decision should be given? A or B is better off? When total sales potential value is in limited factor, what product is better off? When raw material is in short supply, which product is better off? And when production capacity is in limiting factor, which product is in better off? कौन सा प्रोडक्ट अच्छा है, कौन सा प्रोडक्ट बुरा है, कंपेयर करना है.
इसको बोल जाता है की फैक्टर का प्रॉब्लम्स, लिमिटिंग फैक्टर। नाउ फर्स्ट क्या है, हम मार्केट में कितना यूनिट सेल कर सकते हैं उसका लिमिट है। महीने में 10,000 यूनिट ही बेच सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं बेच सकते। नंबर ऑफ यूनिट्स इज अ लिमिटिंग फैक्टर, बराबर। दूसरा, सेल्स पोटेंशियल वैल्यू, 10 लाख का ही सेल कर सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं कर सकते। वैल्यू वाइज इज ए लिमिटिंग फैक्टर। थर्ड वन इज रॉ मटेरियल। अभी रॉ मटेरियल कितना है, एक को 2 केजी लगता है, एक को 3 केजी लगता है ना, वो रॉ मटेरियल लिमिटिंग फैक्टर है। व्हाट डिसीजन शुड बी, विच इज बेटर प्रोडक्ट, ए और बी। एंड लास्ट वन इज प्रोडक्शन कैपेसिटी इन टर्म्स ऑफ मशीन आवर्स। इफ those are limiting factors, which product is better off, that decision we have to take. Assuming raw material is a key factor, availability of 10,000 kg, ये second part है, this we will deal separately. Second part is completely detached question, but linked with that, but it is completely detached. So read the question first, carefully read करो। ये प्रॉब्लम समझ में आ गया तो काफी हद तक हम लोग आगे बढ़ जाएंगे मार्जिनल कॉस्टिंग के। सर युनिट्स घेताना आपण 3,500 घेणार का रॉ मटेरियल नुसार जे येतील ते घ्यायचे? बी पार्ट नंतर, पहिले ए पार्ट कंप्लीट करूया। येस. चलो लेट्स स्टार्ट। स्टेटमेंट ऑफ कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, स्टेटमेंट ऑफ मार्जिनल कॉस्ट एंड कंट्रीब्यूशन। दो तीन प्रोडक्ट है, नाम क्या है प्रोडक्ट के, ए एंड बी है ना, प्रोडक्ट ए एंड बी। सेल्स प्रोडक्ट ए, प्रोडक्ट पर यूनिट। चलो ए, how much is sale, 100 and 120, 100 and 120 less variable cost. Now how much is variable cost, रॉ मटेरियल पहले तो मटेरियल कॉस्ट कितना है, मटेरियल कॉस्ट, मटेरियल कॉस्ट कितना है, हाँ 10 and 15, केजी में नहीं लेना इधर, नहीं तो बोलोगे केजी में ले लेंगे। 10 and 15, 10 and 15, वो केजी में कहाँ पे यूज करना है वो बोलता हूँ आपको, लिमिटिंग फैक्टर में यूज करना है। आफ्टर मटेरियल कॉस्ट, डायरेक्ट वेजेस 15 10, 15 10, डायरेक्ट एक्सपेंसेस 5 6, 5 and 6, मशीन आवर यूज नहीं, फिक्स का नहीं यूज करते बिकॉज फिक्स वी यूज आफ्टर कंट्रीब्यूशन। वेरिएबल कॉस्ट 15 20, ओवरहेड्स 15 and 20,
15-20 total VC, total variable cost, total variable cost. Now how much is total variable cost? Sales minus $55 and $69. Variable cost is 55 and 69. Sorry. Variable cost is 45 and 51. Sorry. Contribution. Contribution. That is sales minus variable cost. 100 minus 45 and 69. ठीक है. PV ratio. PV ratio. क्या what is the formula for PV ratio? Contribution divided by sales multiplied by 100. फॉर्मूले लर्न होते हैं ना रे आप लोगों के, और लास्ट पेज पे लिख रहे हो ना आप लोग फॉर्मूला. कितने हो गए फॉर्मूले लास्ट पेज पे? अरे सब लोग लिख रहे हैं ना लास्ट पेज पे फॉर्मूले, तो है ना. नंबर बोलना डायरेक्टली मुझे. आई नो, आई ट्रस्ट यू. अरे शाबाश. ओके, नो प्रॉब्लम. मैनेजमेंट का परफेक्ट आदमी है एकदम तू. अच्छा मैनेजमेंट करेगा तो ठीक है. चलो, पीवी रेशियो. कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय सेल्स इंटू 100. कितना परसेंटेज है? 55%. और दूसरे का अच्छा डेसिमल में है क्या? 57.5%. सो पीवी रेशियो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट आ गया, पीवी रेशियो आ गया. सी नाउ क्वेश्चन क्या पूछा है उन्होंने? व्हेन सेल्स पोटेंशियल इन यूनिट्स इज लिमिटिंग फैक्टर. ठीक है, जस्ट फर्स्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड. व्हेन नंबर 1, व्हेन लिखो मत कुछ. व्हेन सेल्स इन यूनिट्स आर लिमिटिंग फैक्टर. ठीक है, लिमिटिंग फैक्टर मतलब की फैक्टर है. हम लोग इससे ज्यादा नहीं बेच पाएंगे. That means limiting factor is sales in units. When sales, please note, please understand, when sales in unit is a limiting factor, जिसका contribution per unit ज्यादा है वो प्रोडक्ट अच्छा है, वो प्रोडक्ट ज्यादा बनाने के अपन ने. ए एंड बी मिला के मैं 100 यूनिट्स ही बेच पाऊंगा मार्केट में एक महीने में. ए एंड बी मिला के, दोनों मिला के, दोनों ए एंड बी both put together I can sell only 100 units in market. So आप कौन सा ज्यादा बनाओगे? जिसका कंट्रीब्यूशन पर यूनिट ज्यादा है वो, जिसका कंट्रीब्यूशन पर यूनिट ज्यादा है. नाउ इन दिस केस किसका कंट्रीब्यूशन पर यूनिट ज्यादा है? प्रोडक्ट बी का. सो प्रोडक्ट बी, व्हेन सेल्स इन यूनिट इज द लिमिटिंग फैक्टर, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, द प्रोडक्ट हैविंग कंट्रीब्यूशन पर यूनिट should be preferred over other. समझ में आया? लिखो मत कुछ, हम लिखेंगे, अंडरस्टैंड कर लो. सेकेंड फैक्टर, व्हेन सेल्स पोटेंशियल इज इन लिमिटिंग फैक्टर, सेल्स इन यूनिट्स रुपीज में, वैल्यू टर्म्स में अगर जाएगा, देन वी हैव टू कंपेयर द पीवी रेशियो. देन वी हैव टू कंपेयर द पीवी रेशियो. जिसका पीवी रेशियो अच्छा, दैट इज अ गुड, दैट प्रोडक्ट शुड बी preferred first. In second scenario कौन सा लेना है? Product B. Why? Its PV ratio is 57.5%. So when sales in rupees, in values, is limiting factor. When sales in value is a limiting factor. हम लोग जिसका PV ratio ज्यादा है वो कंसिडर करेंगे. थर्ड क्वेश्चन क्या पूछा उन्होंने? रॉ मटेरियल इज इन शॉर्ट सप्लाई. अभी रॉ मटेरियल शॉर्ट सप्लाई में है. थर्ड सिनेरियो इज व्हेन रॉ मटेरियल इज इन शॉर्ट सप्लाई. व्हेन रॉ मटेरियल इज इन शॉर्ट सप्लाई, व्हाट डज इट मीन्स? रॉ मटेरियल मेरे पास 10 kg है फॉर एग्जांपल, 100 kg है. इतना ही महीने में इतना ही रॉ मटेरियल अवेलेबल है, इससे ज्यादा रॉ मटेरियल अवेलेबल नहीं है.
सो कौन सा प्रोडक्ट बनाना पड़ेगा? हाँ, वाई नहीं, उसका पहले डिसीजन हमको वर्किंग करना पड़ेगा एक, ठीक है? उसके लिए करते हैं कंट्रीब्यूशन पर की फैक्टर ऑफ रॉ मटेरियल, कंट्रीब्यूशन पर की फैक्टर, contribution per key factor. Now what is per first? Raw material is key factor. Raw material is key factor. पहला केस क्या है? रॉ मटेरियल इज की फैक्टर, नहीं सी ना, सिनेरियो नंबर सी है ना ये, रॉ मटेरियल इज अ की फैक्टर. रॉ मटेरियल इज की फैक्टर. तो रॉ मटेरियल पर केजी कितना है? पर यूनिट रॉ मटेरियल रिक्वायर्ड इन केजी पर यूनिट कितना लगता है? 2 kg एंड 3 kg, 2 kg एंड 3 kg. So contribution per kg of raw material, contribution per kg of raw material. So ये क्या फॉर्मूला बनेगा? टोटल कंट्रीब्यूशन पर यूनिट डिवाइडेड बाय की फैक्टर. इसका फॉर्मूला क्या बनता है? कंट्रीब्यूशन पर यूनिट डिवाइडेड बाय की फैक्टर. नाउ की फैक्टर क्या है? रॉ मटेरियल. देखो कंट्रीब्यूशन 55 था, रॉ मटेरियल 2 kg लगता है, कंट्रीब्यूशन पर केजी इज 27.5, इसका 23 रुपीज. सो इन दिस केस जिसका की फैक्टर, लिमिटिंग फैक्टर का कंट्रीब्यूशन ज्यादा रहेगा दैट प्रोडक्ट. सो इन केस नंबर 3 वी शुड ऑप्ट फॉर प्रोडक्ट ए फर्स्ट. व्हाई? बिकॉज इट्स कंट्रीब्यूशन पर यूनिट पर लिमिटिंग फैक्टर ऑफ रॉ मटेरियल इज हायर. अंडरस्टूड? सो फर्स्ट सिनेरियो में हमने कौन सा लिया? प्रोडक्ट बी. सेकेंड सिनेरियो में बी. थर्ड सिनेरियो में प्रोडक्ट ए. अभी फोर्थ सिनेरियो में कंट्रीब्यूशन पर की फैक्टर, रॉ मटेरियल क्या है, लिमिटिंग फैक्टर क्या है? डी ना रे, कैपेसिटी ना, मशीन आर्स. मशीन आर्स इज की फैक्टर. मशीन आर्स required in hours per unit कितना है? 3 hours and 2 hours. 3 hours and 2 hours. So contribution per machine hour. So what will be the key contribution per machine hour? Contribution कितना है? 55 रुपए, बराबर, डिवाइडेड बाय मशीन आवर 3 रुपीज. और इसका तो कौन सा प्रोडक्ट लेना चाहिए? हाँ, ए या बी? ए या बी? ए. वाई ए? हाँ, Sir, B, sir, because contribution is more. कंट्रीब्यूशन पर यूनिट पर की फैक्टर इज हायर ना. यहाँ पे 27 क्यों लिया? ये दोनों में से कंपेयर हायर, हायर इज बेटर ना. यहाँ पे हायर कौन सा है? 34. सो दिस शुड बी प्रोड्यूस. सो व्हेन, चलो फोर्थ एलिमेंट, व्हेन मशीन आवर्स is in short supply. When machine hours is in short supply. चलो, so अभी लिखते हैं. ये लिख लिया क्या? यहाँ तक ये सॉल्व कर, इतना लिख लिया. हाँ चलो इतना लिखो, फिर हम लोग कंक्लूजन में जाते हैं.
Done. Now when sales in unit is a limiting factor, product having higher contribution per unit will be more profitable. In this case, product B, बराबर ना, will be more profitable as it is having higher contribution per unit. चलो, so scenario 1 का हमने conclusion लिख दिया. Product having higher contribution per unit will be more profitable when sales per unit are limiting factor. ठीक है. When sales value is limiting factor, हम लोग क्या आंसर लिखेंगे? Product having higher PV ratio. Higher PV ratio. In this case also product B, यहाँ पे भी लिखना रहेगा क्या? Product B. In this case, product B will be more profitable as it is having higher PV ratio. Done? Third, when raw material is in short supply, product having higher contribution per limiting factor. Per limiting factor. That is RM will be more profitable. In this case कौन सा है? Product A is having as it is having higher contribution per key factor. अलग लक्षात आता पक्का. Done ना? Last understanding? And last one. समझ में आ रहा है कि नहीं? जिसने ग्रुप 2 नहीं अटेंड किया, समझ में आ रहा है? पक्का? ऑनलाइन फ्रेंड्स, जिसने ग्रुप 2 अटेंड नहीं किया, तुम दोनों ने ग्रुप 2 अटेंड किया हुआ है? नहीं किया है क्या? है. समझ में आ रहा है तो आना ही चाहिए. ऑनलाइन फ्रेंड्स, understood? This is Yes, make sir. or break, हाँ? Yes, sir. Marginal costing में this is make or break. मतलब आपको कॉस्ट अकाउंटेंट बनना है कि नहीं बनना है, ये डिसीजन लेना है. मार्जिनल कॉस्टिंग, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, बजटरी कंट्रोल, इनफैक्ट ईच एंड एवरी पॉइंट. बट ये तो तुम्हारे जिंदगी भर चलने वाला है ये टॉपिक्स. नेक्स्ट, दैट इज मशीन आर ना. Product B will be more profitable, it is having high contribution. That's it. लिख लो.
देन बी पार्ट कंप्लीट करेंगे. बी पार्ट बाकी है ना. Should we? Done? ये समझ में नहीं आया किसी का तो प्लीज रेज देयर हैंड. आई विल एक्सप्लेन इट अगेन. दिस इज इंपॉर्टेंट. दैट इज द रीजन आई एम अगेन एंड अगेन आस्किंग यू वेदर यू आर अंडरस्टैंडिंग और नॉट. कोई भी इंडिविजुअल लेवल पे भी हाथ ऊपर कर सकते हो. डन. फैंटास्टिक. आइदर यू पीपल हैव इम्प्रूव्ड और आई हैव इम्प्रूव्ड. क्या क्या इंप्रूवमेंट हुआ है आप लोगों में या मेरे में? Now what they are saying, assuming raw material as the key factor, availability of which is 10,000 kg, and each product cannot be sold more than 3,500 units. Find the product mix which will yield the maximum profit. Now raw material is the key factor. Okay, यहाँ पे product B में क्या बोला? Continuation of the problem. But in this case they are saying raw material is the key factor. So हम कौन सा product पहले बनाएंगे? A product पहले बनाएंगे. क्यों? When raw material is the key factor, higher contribution per key factor is product A. ये हम लोग पूरा बनाएंगे, पहले बनाएंगे इसको. उसके बाद और कुछ raw material बना तो फिर B बनाएंगे. ठीक है? So when, चलो लिखो, when raw material is a key factor, product A will be more profitable as it is having contribution per key factor, as it is having higher contribution, as it is having higher contribution per key factor with then B, then product B. ठीक है, ये हमारा पहला स्टेटमेंट हो गया. अभी रॉ मटेरियल अवेलेबल कितना है? रॉ मटेरियल अवेलेबल कितना है? 10,000 kg है. लेस यूज्ड फॉर प्रोडक्ट ए. प्रोडक्ट ए के लिए कितना यूज कर पाएंगे हम लोग? 2 kg. और कितना मैक्स कितना प्रोडक्ट बना सकते हैं? 3,500. मैक्स कितना है? 3,500. सो लेस यूज फॉर प्रोडक्ट ए इज 3,500 यूनिट्स मल्टीप्लाइड बाय पर केजी रिक्वायरमेंट कितना है? 2 kg पर यूनिट. बराबर ना? सो कितना यूज होगा? 3,500 into 2. बराबर. सो हम लोग why we have decided to go for product A and product A के पूरे 3,500 यूनिट बना देंगे. Why? Because the decision is that per key factor contribution of product A is good then product B. येते का लक्षात? Lost. लक्षात येते का नाही? मग मी एवढं का घाचा ओरडून विचारतोय बाबा? हात वर करा नसेल समजत. वरचं पण नाही कळालं काहीच? ते कळालं ना? हा, मग इथपर्यंत कळालं ना? हा. आता आपल्याकडे रॉ मटेरियल अवेलेबल किती आहे? 10,000. आता या 10,000 तुम्ही प्रोडक्ट ए आणि बी दोन्ही बनवू शकता. पहिलं कोणतं बनवणार? ज्याचं कॉन्ट्रीब्युशन पर युनिट ऑफ लिमिटिंग फॅक्टर इज हायर. बरोबर ना? पहिले ते बनवून मग उरलेलं मी बी ला मटेरियल वापरा. का पहिले मी बी बनवेल मग उरलेले मग कॉन्ट्रीब्युशन माझ्या नाही येणार, त्याला प्रॉफिट जास्त नाही येणार. पहले जो अच्छा प्रोडक्ट कॉन्ट्रीब्यूशन दे रहे पहले उसको मिलेगा, फिर बचा कुचा बी को जाएगा.
तो ए को कितना यूज करना पड़ेगा, ए को अगर मैं बना बोलूंगा ए को मैन्युफैक्चर करना है तो ए कितना मैक्सिमम मैन्युफैक्चर कर सकता हूँ 3,500 यूनिट्स. वाई मैक्स दे आर सेइंग 3,500 यूनिट्स बेच सकते हो. ए का भी 3.5 बेच सकते हो, बी का भी 3.5 बेच सकते हो. हम लोग ए को सर क्यों मग value- लिमिटिंग फॅक्टर सेल्स युनिट्स पण झाले ना सर इनडायरेक्टली. कुठं आहे सेल्स युनिट आहे 3,500 आहे ना सर युनिट्स, ते पण लिमिटिंगच झालं ना बिकॉज दे कॅनॉट बी सोल्ड मोर दॅन 3,500. ऑब्वियसली यस ना. तो लिमिटिंग फैक्टर इज बट रॉ मटेरियल इज इन की फैक्टर इज रॉ मटेरियल. फर्स्ट की फॅक्टर इज रॉ मटेरियल. नंबर ऑफ युनिट्स सबसिक्वेंट. हा आता तुम्ही नंबर ऑफ युनिट 3,500 बीचं जर घेतलं तर पहिलं कोणतं बनवणार तुम्ही, बी बनवलं तर काय होईल, तुमचं सेल्स मिक्स विल गो रॉंग. तुम्ही मॅक्स किती विकू शकतात 3,500. जर तुम्ही जर मॅक्स किती पण विकू शकले असते तर मी प्रोडक्ट बी बनवणारच नाही ना. आय विल नॉट मॅन्युफॅक्चर प्रोडक्ट बी. वाय शुड आय गो फॉर प्रोडक्ट बी? If you can sell as many number as you can of अच्छा either ओके product A सर. or product B, ओके ओके. then what I will do? We'll go for A first because it's a key First, fact. And they B have asked one for will B product बनवणारच mix. नाही ना. I will not Yes, think yes, of B sir. at all. Yes, sir. So first limiting factor is raw material. तर रॉ मटेरियल माझ्याकडे 10,000 आहे. आता या 10,000 मला ए किती यूज कर, ए साठी यूज करेल, ए मॅक्सिमम ए किती मार्केट मध्ये विकू शकतो 3,500. अगर ये 3,500 का लिमिट नहीं रहता तो मैं 10,000 में पूरा ए बनाऊंगा और ए ही बेचूंगा, बी का तो नाम भी नहीं लूंगा ना मैं. अंडरस्टूड सुकन्या? Yes, sir. Yes, understood. So total used for product A is how much? So balance for product B. Balance available for product B. Balance available for product B. ठीक है. So 3,000 kg raw material is for product B, 7,000 kg raw material for product A. Now statement of marginal cost and contribution. Statement of, ये केजी में है, पर्टिकुलर्स RM in kg. Statement of contribution, marginal cost and profit. Product A, B, total. Number of units in sales, number of units, sales, number of units, sales in number of units. So A का कितना सेल होने वाला है 3,500 और B का कितना होगा, B का कितना होगा, हाँ 1,000 इज, हाँ रॉ मटेरियल अवेलेबल फॉर बी इज हाउ मच 3,000 और उसका रॉ मटेरियल पर रिक्वायर RM पर केजी कितना है पर यूनिट 3. सो कितना प्रोडक्ट बन सकता है और इसका RM पर यूनिट कितना है 2. इसका कितना प्रोडक्ट बनेगा ऑब्वियसली 3,000. सो नंबर ऑफ यूनिट्स मैन्युफैक्चर्ड विल बी 3,500 एंड इसका 1,000. अंडरस्टूड ना? यस और नो? पक्का? ओके. सो टोटल में बेचूंगा 4,500 यूनिट्स. टोटल में बेचूंगा. कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट कितना है नाउ? कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, ए का कंट्रीब्यूशन पर यूनिट कितना है? ए का कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, ए का कंट्रीब्यूशन पर यूनिट पक्का ना? ये नहीं लेना है 27. We have to take contribution per unit of that product, not raw material. 55 और B का कितना है 69. So total contribution
कंट्रीब्यूशन, टोटल कंट्रीब्यूशन आएगा 3500 इंटू 55 एंड 1000 इंटू 69, टोटल कंट्रीब्यूशन 2,61,500. लेस फिक्स्ड कॉस्ट. नाउ फिक्स्ड कॉस्ट कितना है? फिक्स्ड कॉस्ट इज 5 and 10 per unit. 5 and 10 per unit. Now 5 fixed cost देखो, 5 into 3,500 इसका कैपेसिटी है, बराबर, प्लस 10 into कितना लेंगे? 3,500 ही लेना पड़ेगा, बिकॉज फिक्स्ड कॉस्ट इज फिक्स्ड. फिक्स्ड कॉस्ट इज फिक्स्ड. तुम 10,000 बनाओ, 1,000 बनाओ या 3,500 बनाओ, मैक्स 3,500 बना सकते, मतलब उतना कैपेसिटी है. मैक्स 3,500 मार्केट में बेच सकते, उतना कैपेसिटी है. अगर आपने 3.5 भी नहीं बनाया, फिर भी फिक्स कॉस्ट उतना आपको आने वाला है 3,500. सो हमारा कैपेसिटी रहेगा, कैपेसिटी के हिसाब से फिक्स कॉस्ट आएगा 5 यूनिट पर ₹5 पर यूनिट इंटू 3,500 यूनिट्स एंड ₹10 पर यूनिट इंटू 3,500. वाई? अगर हम लोग 1,000 यूनिट से करेंगे तो क्या होगा? ये वेरिएबल कॉस्ट बन जाता है ना, देन इट बिकम्स वेरिएबल कॉस्ट. सो आवर कॉस्ट इज नॉट वेरिएबल कॉस्ट, आवर कॉस्ट इज फिक्स्ड कॉस्ट. सो या इस केस में कितना आएगा? 5 इंटू 3,500 एंड यहाँ पे 10 इंटू 3,500. सो टोटल फिक्स्ड कॉस्ट कम्स टू 52,500. अंडरस्टूड? ये कॉन्सेप्ट समझ में आया क्या? नहीं समझ में आया तो पूछ लो. हाँ, यहां पे हमने प्रोडक्ट बनाया 1,000, लेकिन फिक्स्ड कॉस्ट एप्लीकेशन कितना कर रहे हैं? 3,500 पे. वाई? बिकॉज आपने कुछ प्रोडक्ट नहीं भी बनाया, फिर भी इतना आपको 3,500 इंटू 10 रुपीज पर फिक्स कॉस्ट एलोकेशन आना ही है. 0 बनाओ, 10 बनाओ, 1,000 बनाओ, 1,000 बनाओ या 3,500 बनाओ, फिक्स कॉस्ट विल बी फिक्स्ड at capacity level. Clear? So how much will be profit? Profit will be contribution minus fixed cost, 2,09,000. 2,09,000 will be the profit. $2,09,000 will be the profit. Done? पक्का? No query? Online friends? No queries? तर ते 3,500 आपण फिक्स्ड कॉस्ट साठी घेतले, ते जरा कन्फ्युज झालं सर. फिक्स्ड कॉस्ट कैपेसिटी हो आता है सुकन्या, वेदर यू मैन्युफैक्चर और नॉट मैन्युफैक्चर. फिक्स्ड कॉस्ट इज तुमने जितना कैपेसिटी बना के रखा है उस हिसाब से फिक्स्ड कॉस्ट आएगा तुम्हारा. अगर यहाँ पे आपका 0 प्रोडक्शन है, फिर भी आपका फिक्स्ड कॉस्ट 35,000 आएगा. क्यों? उतना कैपेसिटी आपने बना के रखा है. यहाँ पे आपने 3,500 भी ले लिया, फिर भी यहाँ पे फिक्स्ड कॉस्ट विल बी 35,000 ओनली. वाई? बिकॉज आपका कैपेसिटी उतना है. तो अभी आपने 1,000 यूनिट्स बनाए, तो फिक्स्ड कॉस्ट विल रिमेन दिस ओनली. वो प्रोडक्ट के साथ वेरी नहीं होगा. येस सर. ओके, चलो नेक्स्ट. शुड बी ऑल क्लियर? आवाज नहीं आ रहा है. पक्का होमवर्क देना है. 4-5 प्रॉब्लम आज. इलिस्ट्रेशन नंबर नेक्स्ट. A company has a capacity of producing 1 lakh units of a certain products in a month. The sales department reports that the following schedule of sales price is possible. ठीक है. तो अगर तुम्हारा प्रोडक्शन वॉल्यूम 60, 70, 80, 90, 100% से जाता है, तो सेल प्राइस विल रिड्यूस फ्रॉम 90 पैसे टू 80 पैसे टू 75 पैसे 67. ऑब्वियसली जितना वॉल्यूम बढ़ेगा उतना सेलिंग प्राइस कम करेंगे, तो इतना मार्केट में बेच पाएंगे. ओके.
The variable cost of manufacture between these level is 15 paise per unit and fixed cost rupees 40,000. Prepare a statement showing incremental revenue and differential cost at each stage, at which volume the production will be profit be maximum. ठीक है. So हमको कंपनी को डिसीजन देना है कौन सा अच्छा परसेंटेज है, 60, 70, 80 या 90% या 100% लेवल पे सेल करना है. तो उसके लिए हमको इंक्रीमेंटल प्रॉफिट, इंक्रीमेंटल सेल्स, इंक्रीमेंटल कॉस्ट, ये सब चीजें एलिमेंट हमको फाइंड आउट करना पड़ेगा. जस्ट रीड वंस, सिंपल है. डोंट गो ऑन ये इतना वर्ड आर डिफिकल्ट यूज किए, बट प्रॉब्लम्स आर सिंपल. चलो रीड द क्वेश्चन, देन विल सॉल्व इट. Should we start? चलो. Statement of incremental cost, differential cost and incremental revenue. Statement of, थोड़ा 2 मिनट रुक जाओ, हम लोग कितना टेबल करेंगे वो पता चलेगा, उसके बाद आप बनाओ. Statement of differential cost and incremental revenue and profit. क्या दिया है? वो प्रोडक्शन है कि सेल? ये वॉल्यूम परसेंटेज. फर्स्ट वॉल्यूम परसेंटेज, दूसरा सेलिंग प्राइस पर यूनिट, टोटल सेल्स. ठीक है. वेरिएबल कॉस्ट per unit, total variable cost, fixed cost, total cost, profit, differential cost, incremental profit, incremental revenue. ठीक है. सो बनाओ, ये इतने सारे कॉलम्स लगेंगे अपने को, कोई गरज नहीं है. ये थे नॉट रिक्वायर्ड एट दिस स्टेज. यूनिट्स नहीं दिए ना हमने, यूनिट्स ही नहीं डाले. सेल्स यूनिट्स है ना. सॉरी, एक कॉलम रह गया था. हाँ, ना मैं अगर इसको बोलूंगा ए, इसको बोलूंगा बी, इसको बोलूंगा सी, डी इज इक्वल टू बी इंटू सी. ठीक है. एक एक करते जाएंगे हम लोग.
ठीक है. So volume in percentage कितना है? 60, 70, 80, 90 and 100. 60%, 70%, 80%, 90%, 100%. Done. Now at 100% capacity कितना volume है? Company is having capacity of producing 1 lakh units per month. So at 100% capacity कितना? 1 lakh units at 100% capacity. So 90% capacity पे कितना रहेगा? 1 lakh divided by 100 multiplied by 90. 80% पे 1 lakh divided by 100 multiplied by 80. अब बोलोगे क्या बचपना है? 1 lakh divided by 100 into 70 and 1 lakh divided by 100 into 60. Number of units, ठीक है. Now selling price per unit 60% capacity पे देखो 90% 90 पैसे 80 पैसे 75 पैसे 67 पैसे and 61 पैसे. डन. अंडरस्टूड? यहां तक समझ में आ गया? पक्का? ऑनलाइन फ्रेंड्स अंडरस्टूड? यहां तक जो प्लॉटिंग किया समझ में आया है कि नहीं? यस सर. हाँ सर, यस सर. ठीक है. टोटल सेल्स नाउ सीज. टोटल सेल्स will be units into per unit, sales price per unit. Total number of units multiplied by selling price per unit. Total number of units multiplied by selling price per unit. 90,000 into 67,000 and 1 lakh into 60. So this is how the total sale is derived now. Done? सेल्स डिरिवेशन हो गया? कर लो कोई बात नहीं. डन. ना वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट कितना दिया है देखो. The variable cost of manufacturing between this level is 15 paise per unit. Variable cost is how much? 15 paise per unit. So variable cost per unit remain fixed. बराबर? So कितना भी मैन्युफैक्चरिंग करो पर यूनिट 15 पैसे आने वाला है. लक्षात येते ना सगळ्यांच्या? पक्का? ठीक है. Now total variable cost is what? B, number of units multiplied by variable cost per unit. So number of units 70,000 into 0.15, 80,000 into 0.15, 90,000 into 0.15 and 1 lakh into 0.15. डन. फिक्स्ड कॉस्ट कितना है? 40,000. फिक्स्ड कॉस्ट इज 40,000. नाउ B C D E F G. It is 40,000. Now whatever your production is, it is fixed. बराबर ना? प्रोडक्शन कुछ भी रहो आपका फिक्स्ड कॉस्ट इज गोइंग टू रिमेन फिक्स्ड एट 40,000. Now what will be the total cost? H is equal to F plus G. बराबर ना? F is variable cost and fixed cost. So variable cost plus fixed cost will be this element. पक्का? Any question? नहीं ना?
Now what will be the profit? Sales. I is equal to B minus H. Sales minus total cost ना? Sales minus total cost. बराबर ना? पक्का? श्योर? ओके, आप बोलते हो तो बराबर रहेगा. हाँ, यूनिट्स माइनस कर दिए क्या? सर 54,000, यस सर. समझा, यूनिट से माइनस कर दिया. सेल्स माइनस सेल्स वैल्यू माइनस कॉस्ट. आप लोग अलर्ट हो? मैं भी यूनिट से माइनस कर दिया. ओके. Now tell me at which capacity company is better position? Why? Higher profit कहाँ पे है? 60% लेवल पे कंपनी का प्रॉफिट कितना है? 5,000. 70 पे 5,500. 80% पे 8,000. 90% पे जाता है तो प्रॉफिट रिड्यूस हो जाता है. 100% में जाता है और कम हो जाता है. So which is better? 80% position is better. So company should not reduce production or sale below 80%. Should not go above 80% also. So differential cost is how much? Differential cost is what? J is equal to, नहीं, differential cost देखो, total cost पे जाते 50,500 minus 49,000. देखो 60% से 70% जाने के लिए डिफरेंशियल कॉस्ट इज हाउ मच? 50,000 माइनस 49,000. उसके बाद में 52,000 माइनस 50,500. आफ्टर दैट 53,500 माइनस एंड लास्ट वन 55,000 माइनस. सो योर डिफरेंशियल कॉस्ट इज 1,500. जैसा परसेंटेज बढ़ता है इतना ही कॉस्ट बढ़ रहा है. नाउ व्हाट इज डिफरेंशियल रेवेन्यू? Differential revenue is nothing but 56,000 minus 54,000. 60,000 minus 56,000. Incremental revenue 60, 70%, 80, now 90% पे जाऊंगा तो मेरा रेवेन्यू कितने से बढ़ने वाला है? 300 रुपए से. एंड 61 से अगर और ऊपर जाता हूं मैं तो मेरा रेवेन्यू इज गोइंग टू. See देखो, रेवेन्यू वी कैन गो बाय डिसीजन बाय दिस 8,000 ऑल्सो. और रेवेन्यू भी देखो वही पे जाता है. यहाँ पे मेरा कॉस्ट 1,500 से बढ़ रहा है, रेवेन्यू 2,000 से बढ़ रहा है. गुड, फिर भी थोड़ा बहुत प्रॉफिट है. यहाँ पे कॉस्ट 1,500 से बढ़ रहा है, रेवेन्यू 4,000 से बढ़ता है. वेरी गुड. यहाँ पे कॉस्ट मेरा 1,500 से बढ़ा लेकिन रेवेन्यू 300 से. डोंट गो. कौन करेगा? 300 रुपए 1,500 रुपए खर्च करके 300 रुपए लेना है? कोई करेगा नहीं. सेम ओवर हियर ऑल्सो. डन? पक्का? हाँ, okay, पक्का. So at company is in good position at 80% capacity level, that decision has to be given. Now illustration number next 13. यही है ना? 13 है ना?
a company is at present working at 90% of its capacity and producing 13,500 units per annum. It operates a flexible budget control system. The following figures are obtained from its budget. Okay, so capacity कितना है 90% and producing 13,500 units per annum. At 90% capacity sales is 15 lakhs. At 100% capacity भी जाते हैं तो sales is 16 lakhs. Fixed expenses 3 lakh 500, 3 lakh 600, थोड़ा बढ़ रहा है अभी दिया है इन्फॉर्मेशन. नॉर्मली बढ़ना नहीं चाहिए लॉजिकली, बट फिर भी बोल रहे हैं 100 रुपए से बढ़ने वाला है तो बढ़ने वाला है, ठीक है. सेमी फिक्स्ड एक्सपेंसेस 97,500 से 1 lakh 500. वेरिएबल एक्सपेंसेस 145, 149, 500. Units made 13,500 and 15,000. Labor and material cost per unit are constant under present condition. Profit margin is 10%. You are required to determine differential cost of producing 1,500 units by increasing capacity to 100%. What would be the recommend for an export price of 1,500 units, taking into account that overseas prices are much lower than indigenous price? So decision making a problem है. Read the question carefully twice. दो बार read कर लो. And good thing is that this is last question of today's session. So इसको complete करेंगे और घर पे जाएंगे. ठीक है? तो एनर्जी लाओ. See, in this problem, they have given all information other than material and labor cost. Material and labor cost दिया नहीं. So we will have to first find out computation of material and labor cost. ये working note number 1 है. स्टार्टिंग ही वर्किंग नोट से पर्टिकुलर्स अमाउंट रुपीज at 90% capacity. At 90%. क्योंकि हमको इंफॉर्मेशन दिया है 90% पे, सो हम 90% के बेसिस पे हम फाइंड आउट करेंगे. डन. शुड वी स्टार्ट. सेल्स कितना होता है? सेल्स इन रुपीज कितना है 90% कैपेसिटी पे? सेल्स 15 लाख. देखो 15 लाख. ओके. नाउ प्रॉफिट एलिमेंट कितना बेटा है? प्रॉफिट मार्जिन इज 10%. बराबर. प्रॉफिट इज 10%. लेस profit margin at the rate 10%. So 15 lakh का 10% profit. So balance remain is what? Total cost. बराबर. ये अपना total cost है अभी. Yes or no? Total cost आ गया. Now from this less cost, less वन बाय वन एक एक कॉस्ट माइनस कर देंगे. लेस फिक्स्ड एक्सपेंसेस कितना है? 3,500,000. लेस फिक्स्ड कॉस्ट 3,500,000. यस और नो? सी फिक्स्ड एक्सपेंसेस कितना है? 3,500,000. पक्का. देन वी आर वर्किंग एट टोटल 90% कैपेसिटी ओनली. सेमी फिक्स्ड एक्सपेंसेस 97,500. लेस सेमी fixed expenses 97,500. आपण असे प्रॉब्लेम कुठे बघितले होते? ऑपरेटिंग कॉस्टिंग मध्ये.
backward working, less variable expenses. 1,45,000. So balance is what? और कुछ का expenses है कम करना है नहीं. Balance is material and labor cost. Balance is material and labor cost. So from total cost, if you reduce how much is material and labor cost? 8,07,000. बराबर? हाँ, yes or no? पक्का? अभी ये वर्किंग हो गया अपना. Now we have to find out differential cost of 1,500 units. पक्का समझ में आ गया? अभी दूसरा स्टेटमेंट ऑफ डिफरेंशियल कॉस्ट फॉर 1,500 यूनिट्स फॉर 1,500 यूनिट्स. बराबर? कैसे 1,500 यूनिट्स? 15,000 माइनस 13,500. बराबर ना? पर्टिकुलर्स अमाउंट रुपीज for 1,500 units. Number of units 1,500. Should we start? Number of units italic में डाल रहा है. डिफरेंशियल कॉस्ट फाइंड आउट करना है. पहले तो हमको रॉ मटेरियल एंड लेबर कॉस्ट, मटेरियल एंड लेबर कॉस्ट कितना आएगा 1,500 यूनिट्स का? देखो 13,500 यूनिट्स के लिए मटेरियल लेबर कॉस्ट इज हाउ मच? 8,07,000. यस और नो? ये 13,500 यूनिट्स है ना? बराबर ना? 90% कैपेसिटी कितने पे था? 13,500 यूनिट्स. हाँ ना? पक्का? हाँ. सो 13,500 यूनिट्स के लिए 8,07,000 है, तो 1,500 यूनिट्स के लिए कितना? दिस इंटू दिस डिवाइडेड बाय दिस कितना है? 89,660. ये एक तरीका है. दूसरा तरीका कैसे कर सकते हैं? सिंपल बोलता हूं. दूसरा तरीका बताओ. यहाँ पे देखो नंबर ऑफ यूनिट्स कितना है? यहाँ पे नंबर ऑफ यूनिट्स 13,500. So RM material and labor cost per unit कितना है? 8,07,000 divided by 13,500, 59.78. तो 1,500 यूनिट्स के लिए कितना बनेगा? 59.78 इंटू 1,500. सेम ही आया? कुछ अलग आया? कुछ अलग आया? बहुत वन एंड द सेम है. मैं कुछ अलग नहीं कर रहा हूं. वर्किंग अलग तरीके से दिखा है. यू आर फ्री टू यूज एनी कॉन्सेप्ट. इसके अलावा भी और बहुत कॉन्सेप्ट आप खुद डेवलप कर सकते हो. यही एक वे नहीं. वी कैन डेवलप एन नंबर ऑफ वेज ऑफ सॉल्विंग द प्रॉब्लम. यू कैन सॉल्व इट. अप्लाई योर लॉजिक एंड सॉल्व इट. डन. ये 15,000 यूनिट्स बनाने के लिए मुझे मटेरियल इतना लगने वाला है. ठीक है. आफ्टर दैट नाउ फिक्स्ड एक्सपेंसेस. फिक्स्ड एक्सपेंसेस कितना? देखो 3,500,000 माइनस 3,06,000. एग्रीड? डिफरेंशियल है ना ये? 100 रुपया. 3,06,000 माइनस 3,05,000. कैसे भी उल्टा सीधा जो करना है वो करो. लॉजिक इज वन एंड द सेम. डिफरेंशियल कॉस्ट है ये. हाँ या ना? पक्का ना?
Fixed expense, semi-fixed expenses. Semi-fixed expenses. कितना? 1,500,000, 97,500. 1,500,000. 1,500,000 है ना रे? 1,500,000 minus 97,500. ₹3,000. Variable expenses कितना है? 149,500. 149,500 minus 145 lakhs. और कुछ है? नहीं. So total differential cost for 1,500 units कितना है? 97,266.7. राउंड में लेना है, लो नहीं लेना है, मतलब आपकी मर्जी, कोई आपको खाएगा नहीं मार्क्स इधर. हाँ, बराबर. डिफरेंशियल कॉस्ट पर यूनिट is 97,267 divided by 1,500. So this divided by 1,500 कितना है? 64.84 rupees. So एक्सपोर्ट मार्केट में इसके ऊपर कुछ भी प्राइस लगा के बेच सकते हो. एनीथिंग अबाउ दिस इट विल बी गुड फॉर द कंपनी. बराबर. दिस इज द डिफरेंशियल कॉस्ट. अभी इसके ऊपर 1 रुपया भी डाल के बेचोगे तो आपको प्रॉफिट आएगा उतना. इसके नीचे नहीं बेचना चाहिए. 1,500 यूनिट जो है एक्स्ट्रा बनाने वाले, इसके नीचे नहीं बेचना चाहिए. ठीक है. Now your homework is illustration number 14. Illustration number 15. Illustration number 14 and illustration number 15. खत्म. प्रॉब्लम खत्म. तो एक ही करो. चलो 14 इज फॉर होमवर्क, 15 हम लोग यहाँ पे करेंगे और ऊपर वाले 2 बाकी है प्रॉब्लम. अभी एकदम बिगनिंग के 2 बाकी है ना, मार्जिनल, वो एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग हो जाएगा. ठीक है. नॉट एनी, बट ओल्ड बुक में थोड़ा ज्यादा प्रॉब्लम है क्या? यस सर, 20 है. ओल्ड बुक में ज्यादा प्रॉब्लम है. ठीक है. 21 सर, 21. ठीक है. तो इलस्ट्रेशन नंबर 14 इज फॉर योर होमवर्क. 15 यहाँ पे सॉल्व करेंगे. ऊपर वाले 2-3 प्रॉब्लम बाकी है वो सॉल्व करेंगे. नेक्स्ट लेक्चर मार्जिनल कॉस्टिंग विल बी कंप्लीटेड. विल स्टार्ट विथ स्टैंडर्ड कॉस्टिंग. डोंट मिस द स्टार्टिंग ऑफ स्टैंडर्ड कॉस्टिंग.